Last class, what we discussed in last class, we discussed about the gaps model. We discussed about the different types of gaps model. How many gaps models are there? There are 5 gaps model. The first one is the knowledge gap. Second one is the policy gap. The third one is the delivery gap. Fourth one is communication gap. And the fifth one is the customer gap. Anyone have any doubt in the customer? Anyone have any doubt in this topic, gaps model? किसी को कोई doubt है? Anyone? किसी को भी कोई doubt? No, ma'am. Okay, so in today's class, we are going to do the revision work of the service triangle, and after that, we are going to do the revision work of the consumer buying decision process. ठीक है, इन दोनों को आज हम कंप्लीट कर लेंगे हम लोग. एक बार ध्यान से इसको देखिएगा, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं हैंड रेज. ठीक है, सो मैं स्क्रीन चलिए, turn on your camera everyone. Yes, so this is ये service triangle है, service triangle. Here we are going to understand about the marketing concept, servicing marketing concept. What are the 3 types of marketing? Internal marketing, external marketing and interactive marketing. ठीक है, so the service market triangle जो है, it is shows that how the actors in the company, the actors of the basically marketing, कैसे सर्विस बिजनेस को किस तरीके से दे आर गोइंग टू, मतलब कैसे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हाउ द पीपल्स आर इन्वॉल्व इन दिस. ठीक है, कंपनी हो गया, एम्प्लॉइज हो गए या कस्टमर्स हो गए, हाउ दे आर इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू द सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल. ठीक है, तो मार्केटिंग ट्रायंगल क्या दिखाता है? इट शोज की एक्टर्स. ठीक है, यानी मार्केटिंग को कौन चला रहा है, की एक्टर्स. 3 की एक्टर्स हैं सर्विस बिजनेस में, और वो कौन है? कंपनी है, प्रोवाइडर, सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा? एम्प्लॉइज. ठीक है, एंड द फाइनल वन इज द कस्टमर. सो हाउ दीज 3 वर्क्स, राइट. तो यहाँ पर थ्रू दिस डायग्राम, इस जो डायग्राम बना है इसको आप लोग देखिए. Like the technology is between these this triangle, and it means that with the help of technology. What does it mean? With the help of technology, right? So all these marketing is happened by the support of the basically technology. ठीक है, and nowadays we all know that the whole marketing scenario is dependent on the technology. Just wait for a second. So the first one is like company, and company के बीच में और providers के बीच में. सबसे पहले external देखते हैं. कंपनी और कस्टमर के बीच में कौन सा मार्केटिंग होता है? That is external marketing. Company is giving, basically company is promising to use the advertisement करता है, sales promotion करेगा. ठीक है, they will launch their products, services. डायरेक्ट मार्केटिंग लाइक डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल्सो देयर. ठीक है, कंपनी डायरेक्टली मेल वगैरह करता है कस्टमर्स को. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द एक्सटर्नल मार्केटिंग. एक्सटर्नल मार्केटिंग इज समथिंग वेयर द कंपनी एंड कस्टमर्स आर इन्वॉल्व इन दैट. हाउ कंपनी आर टेलिंग यू अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाया यूजिंग एडवर्टीजमेंट, बाय यूजिंग द सेल्स प्रमोशन. एवरीवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन? एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन का क्या मतलब होता है, सबको पता है? Yes, ma'am. Everyone. So basically the company is involved with the customer for external marketing through promotion. We can say this like company is interacting with customer via promotion. Promotion के through क्या होता है? Involve होता है. Company promise करता है, company aware कराता है about the product. They will tell you about the quality, they will tell you about the services, they will tell you about the offers, they will try to make the public relations, as well as they are also going to do the direct marketing, like they can use the basically direct mails. ठीक है, where they can use the social media and all. So this is external marketing. Next one is internal marketing. See, we all knows that the final whom we are going to sell the products, मतलब products में goods services दोनों included है. So finally whom we are going to sell? Obviously customers. But before providing the product या goods and services to the customer, we have to be very clear internally that what kind of products we are making. कौन सी सर्विस क्या प्रोवाइड करे, गुड्स क्या प्रोवाइड करे, that should be clear.
and how it is going to be clear by using the internal marketing approach. इंटरनल मार्केटिंग में यहाँ पर दो तरीके की कम्युनिकेशन की बात की गई है. वर्टिकल कम्युनिकेशन. वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली वर्टिकल कम्युनिकेशन इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द डिफरेंट लेवल्स ऑफ दिस, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल, देन द लोअर. सो द वर्टिकल इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, वेयर द डेजिग्नेशन जो है वो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे डेजिग्नेशन एंड ऑथोरिटी इज रिड्यूसिंग. ठीक है, so this is known as the vertical communication. It can be in the both form, it can be in the downward form as well as it can be in the upward form. So this is known as the vertical communication. Whatever policy is made by the top level managers, top level people, और top level पे कौन होते हैं? CEO हो गए, directors हो गया. ठीक है, so whatever policy is made by the basically these top levels, that is going to communicate by the middle level में कौन आएंगे? आपके आते हैं ज्यादातर ये managers. So managers are those who are going to implement all the policies in the overall office. ठीक है, and the last one is the lower level where the supervisor जो होते हैं, supervisor वगैरह, और इसके अंदर में workers वगैरह काम करते हैं. So this kind of communication, the downward communication is something where the top level authority से lower तक जाए. Upward is something where the lower authority से upward यानी कि top level तक जाए. So the first communication is the vertical communication. ठीक है, the next one is horizontal communication. Horizontal communication क्या होता है? जहां पर आपके मान लीजिए 4 डिपार्टमेंट है. कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? HR, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च. For example, just imagine कि these 4 departments are there in one company. अब ये चारों जो डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट करती है, this is known as horizontal communication. जहां पर जितने लोग हैं उन सब का पोजीशन लगभग सिमिलर है. यानी कि the HR manager, human resource manager, the finance manager, marketing manager, as well as the marketing research manager. For example, just imagine everyone is in the same designation and there we are going to communicate with each other. In that case, it is known as horizontal. Okay, but in the case of where the authority is decreasing, जैसे जैसे नीचे आ रहा है authority decrease हो रहा है, that is basically vertical communication. So internal marketing में आपके ये दोनों तरीके के communication आएंगे, और साथ साथ में एक और term है, इसको याद रखिएगा कि basically company whatever product they are making, कोई भी product चाहे वो बना रहे हो, they just try to do the trial तो चाहते हैं कि कौन कहाँ से शुरुआत करे इसका? अपनी employees. So somehow we can say that company first sell their goods and their services to their own employees, right? So why this is used? क्योंकि कंपनी कोई भी गुड्स या कुछ भी बना करके मार्केट में लेके जाए और वो मान लीजिए कि फेल हो जाए, वो प्रोडक्ट ना चले, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लॉस हो सकता है ना. तो यू कैन डू द ट्रायल वर्क विद इन द बेसिकली कंपनी. तो आप कंपनी क्या करता है? एम्प्लॉइज को. ठीक है, अब यहाँ पर कम्युनिकेशन करने का क्या मकसद है? कम्युनिकेशन का पहले तो पॉलिसीज होनी चाहिए, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है वो सबको पता होना चाहिए, कोई भी फीडबैक है उससे रिलेटेड बातें हो वो भी पता होना चाहिए. सो इन शॉर्ट, पहले इंटरनली मार्केट जो भी कंपनी है इंटरनली पहले वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना चाहिए. ठीक है, सारे के सारे जो वर्कर्स हैं, सारे के सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे आर ट्रेन्ड. उनको स्किल्ड बनाना ये किसका काम होना चाहिए? कंपनी का काम होना चाहिए, ताकि वो फाइनली कस्टमर तक प्रॉपर प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सके, प्रॉपर सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके. So here the basically the external marketing is between the company and the customers. Company और customers के बीच में होगा. The internal is done between the company and the service provider. Who is the service provider? जो employees, customer executive, all these are the service provider. ठीक है, so ये दोनों concept समझ में आया? Internal marketing and external marketing. Everyone? Yes, ma'am. Okay, so the next point is interactive marketing. So now the point is, what is the meaning of interaction? क्या होता है interaction का मतलब? एक दूसरे से बात, कनेक्शन.
एक्चुअल में जो बेसिक मतलब है इंटरेक्शन का, दैट इज अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. So we are saying that interaction, like the teachers are interacting with the students, and वो तो मुझे पता है कैमरा टर्न ऑन होता नहीं है, तो that is not the part of interaction. मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ. So interaction is something where the conversation is between the two peoples and they are basically facing each other. एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो इंटरैक्टिव मार्केटिंग कैसे हो सकता है? जहां पर आपका जो प्रोवाइडर मतलब जो एम्प्लॉइज हैं वो कस्टमर को पर्सनल सेलिंग, मतलब कि पर्सनल सेलिंग सबको पता है, जहां पर फेस टू फेस हम मिल करके प्रोडक्ट को सेल करते हैं. डोर टू डोर सेलिंग भी इसी का कंसेप्ट है, पर्सनल सेलिंग का ही कंसेप्ट है, जहां पर एम्प्लॉइज या सेल्स पर्सन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सर्विस को बेसिकली प्रोवाइड करवाते हैं किसको? कस्टमर को. So here the interactive marketing is done by a personal selling. Personal selling के through हम interact कर सकते हैं customer से. कौन? Employees. Second one is customer service center, where if we have any kind of complaint regarding to product and services, we can complain it to the, कहाँ पर complain करते हैं हम लोग? कस्टमर सर्विस में. Customer services are present. Customer care are there. तो बेसिकली कस्टमर सर्विस सेंटर्स है, वहां पर एम्प्लॉइज जो हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, वो आपके कंप्लेन को हैंडल करते हैं, कंप्लेन का रिपोर्ट बनाते हैं. तो वहां पर भी फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सकता है. ठीक है, इंटरेक्शन भी यहाँ पे एक फेस टू फेस भी होगा और एक इंटरेक्शन दैट कैन बी वाया टेलीफोन एज वेल. एंड द थर्ड वन इज सर्विसेस्केप, यानी सोशल मीडिया के थ्रू. सोशल मीडिया में क्या हो सकता है? जैसे if you have any kind of queries and all, you can ask easily. ठीक है, वहां पर help me या help का एक बॉक्स आता है, you can ask any question. So in short, जहां पर कंपनी कस्टमर से इंटरेक्ट करेगी तो that is external marketing, and the company can use the advertisement, sales promotion, public relations, direct marketing, all these approach. And in the second one, that is internal marketing, where the communication is between company and the employees. ठीक है, employees जो उनके यहाँ पर काम कर रहे हैं वो गया internal marketing. And the next one is that is interactive, and that is between the service provider. Who is the service provider? They are obviously they are employees of the company, and between the customers. So that is interactive marketing. Anyone have any doubt whatever we studied in this? ये पूरा डायग्राम समझ आ गया? किसी को कुछ पूछना है? Anyone? No ma'am. No ma'am. Now यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं जिसको आप लर्न कर सकते हो. जैसे कि पहला जो है इंटरनल मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? यस, कुछ पूछना है बेटा? सो व्हाट इज द मेन, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कंपनी और जो प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनल मार्केटिंग का मेन कंसेप्ट क्या है? इनेबलिंग द प्रॉमिस. ठीक है, कंपनी इज प्रॉमिसिंग विद द कस्टमर्स, कंपनी एंड प्रोवाइडर्स आर इनेबलिंग दैट प्रॉमिस. ठीक है, सो एंड फाइनल क्या होगा? प्रोवाइडर्स एंड कस्टमर्स के बीच में कौन सा होगा तोशी? मैम इंटरएक्टिव. नहीं, इसके बीच में कौन सा प्रॉमिस? पहला तो था कि सेटिंग द प्रॉमिस, इनेबलिंग द प्रॉमिस, एंड लास्ट वन इज डिलीवरिंग ऑफ द सर्विस. डिलीवरिंग द प्रॉमिस, डिलीवरिंग ऑफ सर्विस. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है? सेटिंग, यहाँ इम्प्लीमेंटिंग या बोल सकते हैं इनेबलिंग, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? डिलीवरिंग. मतलब यहाँ पर प्रॉमिस किया, यहाँ पर प्रॉमिस को निभाने के लिए, मतलब इनेबल करने के लिए, इंप्लीमेंट करने का काम प्रोसेस, और यहाँ पर डिलीवर करने का मतलब जो सर्विस हमें डिलीवर करना है. So by using these 3 points, we can understand the whole concept of the service triangle: setting the promise, enabling the promise, and delivering the promise. ठीक है. Now
इंटरनल मार्केटिंग का मतलब क्या है? इनेबलिंग द प्रॉमिस। अब इनेबल हम कैसे कर सकते हैं प्रॉमिस? मान लीजिए कि कंपनी ने कहा कि भाई हम ये प्रोडक्ट या ये मतलब कोई भी सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब उस सर्विस को प्रोवाइड करने का प्रॉमिस तो कंपनी ने कर दिया, बट इसको हम कैसे लागू करेंगे? सो वी कैन इन्वॉल्व फॉर द बेटर, मतलब बोल सकते हैं कि फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, ठीक है। इसके लिए हमें इंटरनल मार्केटिंग को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर को, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसको पहले स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जो आपके यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। सो और इसके लिए क्या है, इंटरनल मार्केटिंग को बेटर करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन इन्वॉल्व द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं। टीम वर्क प्रोग्राम्स, यानी कि जो लोग हैं वो टीम में काम करें, ठीक है। और सारे एम्प्लॉइज के साथ इफिशिएंट वे में कम्युनिकेशन हो रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। सो बाय दिस वी कैन मेक द स्ट्रॉन्ग इंटरनल मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है। इट इज परफॉर्म टू इनेबल एम्प्लॉइज एंड परफॉर्म द सर्विस इफेक्टिवली and keep a promise made to the customer. We all know that finally the products are received to the customer by the service provider. So we have to focus, for in internal marketing we need to focus on the service provider. So we have to basically ये सारे motivational programs चलवाना, फिर motivational program के अलावा आपके training programs चलवाना, कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करना। तो ये सारा का सारा क्यों जरूरी है? ताकि आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इफेक्टिवली डिलीवर कर सके सर्विस किसको? कस्टमर्स। क्लियर होगी बात ये? ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पोर्टर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं कि इंटरनल मार्केटिंग जो है दैट इज अ internal marketing is orienting the service delivery employees and other supporting service people to work as a team to provide customer satisfaction. So internal marketing एक तरीके का एक employees जो है वो किस तरीके से सर्विस डिलीवर करें, ठीक है, किस तरीके से वो टीम में काम करें ताकि प्रॉपर सर्विस डिलीवरी which leads to the customer satisfaction. So it is said by the Kotler and Armstrong, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। तुम लोग को पता है ना वर्टिकल कम्युनिकेशन? अभी बता ही दिया मैंने। वर्टिकल कम्युनिकेशन वगैरह पता है? यस मैम। वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? अप एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और ये किस पर्पस क्या होता है ये कम्युनिकेशन का? क्यों ये कम्युनिकेशन होता है? फॉर सेटिंग द पॉलिसीज भी लिख सकते हो, फॉर एडवाइस के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, उसके बाद इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इन सब चीजों के लिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो होता है, और इसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन समझ जाइएगा कि वर्टिकल कम्युनिकेशन इज समथिंग लाइक दिस एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन समथिंग लाइक पता स्टेप। तो यहाँ पर ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्यों होगा? मान लीजिए जो टॉप लेवल है उसको कोई इंफॉर्मेशन जो है वो मिडिल लेवल को देना हो, या फिर कोई एडवाइस देना हो, या कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करना हो, इम्प्लीमेंट करना हो, ठीक है। तो इन सब के लिए द कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, है ना। एंड दैट कैन आल्सो पॉसिबल अपवर्ड भी हो सकता है। अगर वर्कर को कुछ पॉलिसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो दे कैन आस्क इट टू द सुपरवाइजर. If supervisor have any problem, they can also ask it to the manager. If the manager have any problem, they can also ask this to the top level. So that can be in both way. दोनों तरीके से ये आपका communication चलेगा. So I guess upward or downward vertical communication and horizontal information. Sorry, information is not there. I guess communication is there. Yes, ma'am. Communication is there. So vertical communication and horizontal communication. Now, what is the key component of internal marketing? मतलब how we can basically help the employees to be perfect for providing the proper service delivery to the consumers. So here the key components of the internal marketing is like we have to motivate the employees, and I am literally telling you the motivation works a lot. Okay, so motivating the employees for what? If they are doing a very better work, they are doing the work effectively, in that case we can motivate the employees through both terms, by monetary term and by
Non-monetary term. In the monetary term, we can provide them bonus, we can provide them incentives, and in non-monetary term, what we can do, we can provide them prize, we can provide them appreciation certificate. So we have to motivate the employees, and we can also do one thing, like we can also recognize the person in the front of so many office people. Okay, so we can motivate, we have to motivate the employees so that they will utilize their 100% efficiency and potential for do their better and good work. Okay. Second one is teaching customer satisfaction technique. Like we have to tell the employees that how we are able to satisfy the customer. We have to tell them the techniques, how we need to talk to them, how we need to concern about them, how we need to handle the queries, okay, how we can show the product, how we can demonstrate the product, okay, how we can take the feedback. All these things are need to teach to the employee so that they are able to understand and give the importance to the customer satisfaction. So first thing is to motivate the employee, make them उनके mindset को convert कर दीजिए in the positive direction. ठीक है, the first point. Second one is teaching the customer satisfaction technique. Customer को कैसे satisfy करते हैं उसके techniques को. Next one is communicating the company's goal regularly. Anything can be the goal, but the major goal is to earn the profit, expansion, the survival. These 2-3 points are the basically goals for every company. So we have to communicate with the employees that this company is not only सिर्फ ये मेरा नहीं है ये company, it also belongs to you. मतलब employees को भी हमें priority देनी चाहिए, so that they are able to take the basically they are able to work properly. और क्या goal है इस company का, और हर एक organization और company का goal एक होता है, long term goal. Short term goal can be so many, but the long term goal is only one. So we have to communicate with them, like for example कि इस महीने हमें 30,000 shirts बनाने हैं, so this can be the goal. So we have to communicate the company goals regularly. हमेशा जो भी goal है, जो भी वो हमेशा आप अपने employee से communicate करते रहिए. ठीक है. Managing changes, like we have to basically देखो changes is something जिसमें हर एक कोई fit नहीं हो सकता. True. इस पे मैंने आप लोग को बहुत पहले एक बात भी बताया था कि लाइक इन वन ऑफ द मतलब इन मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसको हम लोग CGHS कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसमें क्या हुआ था कि लाइक कुछ दिनों मतलब पहले लोग रिकॉर्ड्स बनाते थे पूरा का पूरा, हाथ से लिखते थे, बाद में कंप्यूटर आ गया तो बहुत लोगों को दिक्कत होने लगी, बिकॉज दे मतलब उनकी हैबिट नहीं थी ना वैसे वो यूज करने का कंप्यूटर फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी वर्क. So change is something where we need to fit, मतलब उसके लिए एक complex situation create हो सकता है जहाँ पर हमें fit होने में, ठीक है, उसके लिए habitual बनने में time लगे. So we have to basically encourage the employees to adapt the changes, ठीक है. So we have to manage the changes, ठीक है, and उनको ready रखिए कि change को easily adapt कर पाए. Clear है? Training staff on how to use the company service, ठीक है. Start training staff on how to use the company service. Train staff how to use the company की services को कैसे use करना है, कौन कौन सी schemes हैं, customer को कैसे schemes के बारे में बताएं, इसके बारे में staff को train करना है, ठीक है, उनको knowledge देना है. Good pay, working condition. Obviously salary better दीजिए, working condition better होना चाहिए किसका, employees. ठीक है. So if good salary is something which always motivate the people, and working condition where the people are basically where the employees are working, like the office atmosphere, the electricity, water, refreshments and all, everything will come under the working condition. So good pay and the proper working condition should be there. So all these are the points of the internal marketing. So how we can make the strong internal marketing system by basically using these components: motivation, customer satisfaction techniques, communication, managing changes, training of the staff, and good pay and working condition. We can basically first, for any internal marketing concept, first we need to motivate the employees को motivate करना बहुत जरूरी है. Next one is internal marketing process.
आई गेस ये बहुत सारे पॉइंट्स इसमें देखो, अगर जो भी चीज एक्स्ट्रा लगे, देखो इतना ज्यादा तो लिखना नहीं है एग्जाम, कुछ ज्यादा लगे तो आप उस केस में क्या कर सकते हो कि कम अपना शॉर्टकट में लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या तरीके हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके से इंटरनल मार्केटिंग को डिजाइन किया जा सकता है या डिजाइन किया जा सकता है, उसके बारे में देखिए लिखा हुआ। अलाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव विद द एम्प्लॉय एटीट्यूड, ठीक है। तो इंटरनल मार्केटिंग में जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एम्प्लॉइज का जो भी एटीट्यूड है, यू हैव टू मेक इट, मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ एटीट्यूड उनका मैच करे, इस तरीके से बेसिकली हमें क्या करना है, चीजों को मैनेज करना है। लाइक वी हैव टू अलाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव विद द एम्प्लॉइज एटीट्यूड, ठीक है। जो सर्विस पर्सनल है, यानी जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, शुड ऑलवेज बी क्लियरली इन्फॉर्म्ड अबाउट द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है, लॉन्ग टर्म में जो मिशन है और जो रोल है, उसको ब्रीफ में आप बता दीजिए कि भाई ये काम तुमको करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव है, कंपनी ऐसे चलती है, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू टेल द एम्प्लॉय, ठीक है। इससे क्या होगा कि बेसिकली जब एम्प्लॉइज कभी भी कस्टमर से मिलेंगे या फिर सर्विस एनकाउंटर सिचुएशन आएगा जहां कस्टमर और फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे, सो दे बेटर एबल टू हैंडल द कस्टमर्स। The second one is introduce the organizational core value. What is the core value? For example, we can say like in the some company, the core value is to provide the social service. So if the social service is your main goal, your core values, like, and this can be the core value of any company, NGOs की खासकर। और बाकी क्या और हो सकता है core value की, like मैं better product provide करूंगा, the quality, will provide the better quality of service and goods, that can be the core value. So for every employee of the organization should be introduced with the core values and philosophy of the organization, ठीक है, ताकि they are able to understand the customers and the policies. तो लगभग first and second वाला लगभग same ही है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन, लाइक इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कि बहुत सारे, लगभग मान लो कि 9 डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब इस 9 डिपार्टमेंट में काम तो किसी भी डिपार्टमेंट का किसी से भी हो सकता है। सो द कोऑर्डिनेशन यानी मिलजुल करके काम करना, कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे के साथ, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो एम्प्लॉइज जो है उनको ये बात पता होना चाहिए कि वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद एवरी एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉइज के साथ कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि फाइनल गोल हर एक डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबका फाइनल गोल सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, और लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, यानी कि विकास हो ऑर्गेनाइजेशन का और आपका कस्टमर जो है सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द पीपल या फिर डिपार्टमेंट दैट इज रिक्वायर्ड। In short, we can say that because so many peoples are involved in one organization, the chances of conflict is very much high, ठीक है। जब 7-8 लोग मिलते हैं ना, तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अब ऐसे केस में अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे, कंफ्लिक्ट होगा या किसी की भी काम पे इफेक्ट होगा, तो फाइनली इफेक्ट तो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क पे होगा। तो कोऑर्डिनेशन हर एक डिपार्टमेंट के बीच में हो, वर्क जो है वो बोल सकते हैं ना कि वर्क जो है स्मूथली चलता रहे, ऑपरेशन स्मूथली चलता रहे। सो कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉइज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड जो सर्विस मैनेजर है वो मस्ट इंश्योर that each individual in the organization understand the role of the service production and delivery, यानी जितने लोग भी वहां पर काम करें उनका क्या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क एरिया क्या है, किस तरीके से सर्विस डिलीवर करना, दे हैव फुल आइडिया अबाउट इट। एंड जो कंसेप्ट है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज समहाउ व्हिच इज रिलेटेड विद द this concept ki coordination should be there, then after that we can able to manage the service quality. Otherwise that is going to destroy the service delivery system. If there is a conflict between the employees, the people have no idea that what is my working area, how we can work, so the coordination should be there, right? Okay, next, developing trustworthy environment, ठीक है। So the next one is to we have to maintain the trustworthy atmosphere. Employees should feel confident when they are communicating with their superiors, when they are communicating with their seniors, right?
So we all know that when there is a vertical kind of communication is done, then there is a relationship of the superior and subordinate. जब भी कभी भी वर्टिकल कम्युनिकेशन चलता है तो हमेशा देखिएगा कि यहाँ पर दो रिलेशन चलता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. तो डेवलपिंग द ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको ऐसा एटमोस्फेयर बनाना, ओपन एंड trustworthy atmosphere. Open का मतलब है कि if you have any query, you are easily able to ask the question from the seniors, right? So in short, the employee should feel confident to share their views, whatever views that is related with the product, that is related with the people, that is related with the atmosphere, working atmosphere, anything. If anyone have any doubt, the employees can easily able to share their views with the seniors, top authorities to improve the service quality and the reduction of the customer waiting time. So they can ask about anything. कुछ के बारे में भी अगर उनको पूछना है, उनमें कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए कंपनी का कि लोगों को हिचक ना हो, लोगों में हेजिटेशन ना हो कि वो क्वेश्चन ना पूछ सके, खासकर एम्प्लॉइज. ऐसा एटमोस्फेयर होना चाहिए जहां पर बेसिकली द पीपल, जो पीपल मतलब यहाँ पर एम्प्लॉइज, द एम्प्लॉइज आर एबल टू गिव द एडवाइस, द एम्प्लॉइज कैन एबल टू बेसिकली गिव, मतलब आस्क इफ एनी क्वेश्चन इज देयर. सो एक ट्रस्टवर्दी, एक भरोसा वाला और एक बोल सकते हैं ना कि एक ओपन एटमोस्फेयर एनवायरनमेंट को बिल्ड करना जरूरी है. क्लियर हो गया? क्लियर? डन? Next one is empowering employees. See, what is the meaning of empowering employees? Empowering का मतलब होता है सशक्तिकरण. ठीक है, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं. ठीक है. So empowering employees का मतलब क्या हुआ कि इंटरनल मार्केटिंग जो है वो बेसिकली ऐसा होना चाहिए जहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो कुछ राइट या कुछ अथॉरिटी एम्प्लॉइज को भी देकर रखे. ऐसा ना होना चाहिए कि भाई कुछ भी क्वेरी हुआ और कस्टमर वेट ही कर रहा है 5 घंटे तक एंड यू आर बेसिकली आस्किंग टू एक एक करके आप प्रोसेस कर रहे हो. ठीक है, आप अपने से डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो बट यू आर कम्युनिकेटिंग इट विद द टॉप अथॉरिटी. So this cannot be happen. If you want a proper service quality, the first thing is that we have to reduce the customer waiting time. तो ये तो बहुत जरूरी है ही. और तुरंत से तुरंत क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए कोई भी क्वेरी. तो यहाँ पर जो इंटरनल मार्केटिंग है वो एम्पावर करता है, क्या एम्प्लॉइज को एम्पावर करना चाहिए, थोड़ा सा अथॉरिटी देना चाहिए. उनको ये लगना चाहिए कि ये जो ऑफिस है या ये कंपनी है वो मेरे भी है, मेरे से भी बिलोंग करती है. एम्प्लॉइज को थोड़ा सा ऑथोरिटीज देना चाहिए. ठीक है, ताकि कस्टमर सर्विस डिलीवरी में वो ज्यादा क्रिएटिव हो, एंथुजियास्टिक, यानी उनमें ज्यादा उत्साह रहे और वो प्रॉपर सर्विस को डिलीवरी कर पाए ताकि कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो. So in short, we can say that for achieving the goal of the organization, the empowering the employees or providing them some authority by the top level is very much important. Okay, so empowering employees is also basically required for the internal marketing. Next one is reward. So I guess सबको reward का पता ही होगा कि क्या है reward का मतलब. Like we can provide the employees कुछ मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर कुछ बेटर परफॉर्मेंस है तो ऑब्वियसली हम उनको कुछ एप्रिसिएशन अवार्ड्स वगैरह दे सकते हैं. ठीक है, मैम इससे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी होगा ना. हाँ, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट होगा. जैसे कैसे होता है क्लास में जब कुछ बच्चे टेस्ट देते हैं तो उसमें कोई एक या दो बच्चा अगर बेटर करता है तो एक तरीके से कंपटीशन बनता है ना कि बाकी बच्चे सोचते चलो नेक्स्ट टाइम हम फर्स्ट होंगे. सो लाइक व्हेन द एवरीवन वांट द सेम थिंग, लाइक आई हैव टू टॉप इन द क्लास, देन दैट विल मेक द हेल्दी एनवायरनमेंट. बट ये कहने की बात होती है कि भाई हेल्दी एनवायरनमेंट की जगह कुछ और ही ज्यादा ही कंपटीशन हो जाता है. सो बट नॉर्मली वी कैन से लाइक फॉर इट कैन आल्सो जनरेट द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. Next one is prerequisites for the internal marketing. क्या क्या जरूरी है इंटरनल मार्केटिंग के लिए, इसको सिर्फ मैं पॉइंट्स बता देती हूँ. इंटरनल कम्युनिकेशन होना चाहिए एक दूसरे से, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होना चाहिए प्रॉपर, मैनेजरल स्किल बेटर होना चाहिए, टॉप ऑथोरिटी स्किल्ड होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, इंटरनल मार्केटिंग को हम कैसे एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकते हैं उसके तरीके.
अब इंटरनल मार्केटिंग में क्या क्या बैरियर्स, ठीक है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो रोकती है एक प्रॉपर इंटरनल मार्केटिंग को, ठीक है, इम्प्लीमेंट होने में या फिर प्रॉपरली वर्क करने में, ऑपरेशन चलाने में, क्या क्या चीजें, बैरियर्स क्या है इंटरनल मार्केटिंग। एक मिनट, सो व्हाट आर द वेरियस बैरियर्स टू इंटरनल मार्केटिंग, कौन कौन से बैरियर्स है इंटरनल मार्केटिंग के। सो सबसे पहला रेसिस्टेंस टू चेंज, यानी कि बदलाव के लिए रुकावट, रेसिस्ट करना, विरोध करना। तो कभी भी कोई नया जब आइडिया आता है, कभी भी कोई नया आइडिया आता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो उसके कुछ लोग, दो तरीके के उसमें लोग होते हैं। एक तो बहुत लोग फेवर करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसका रेसिस्ट करते हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर अ न्यू आइडिया इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, अ लाइकली रिएक्शंस बाय those getting affected to resist the new idea or the proposed change, ठीक है। बहुत सारे टाइम मतलब ऐसा होता है कि जो रेसिस्ट है वो क्यों होता है, उसका रीजन होता है लैक ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होना, अथॉरिटी का मतलब लॉस ऑफ अथॉरिटी का फियर होना, लॉस ऑफ प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी का, या फिर जॉब सिक्योरिटी। तो इसकी वजह से जो सर्विस मैनेजर्स हैं, दे हैव टू कन्फ्रंट सच फैक्टर्स लीडिंग टू रेसिस्टेंस टू चेंज, एंड उनको इंश्योर करना चाहिए that we are going to appreciate and we are going to implement this. Basically technology, it is related with the technologies, it is related with the policy, it can be anything. यानी कि इंटरनल मार्केटिंग में अगर कोई भी चेंज या बदलाव आता है तो उसके बारे में किसी भी मतलब कंपनी के मैनेजर्स या टॉप अथॉरिटीज को, एम्प्लॉइज को बताना चाहिए कि वी आर बेसिकली implementing this and no problem is there if this is going to implement. क्यों लोग रेसिस्ट करते हैं, उसका बहुत सारा रीजन है। कई बार जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे मैंने बताया कंप्यूटर का, या फिर कोई नई मशीनरी आती है तो लगता है कि हमारा काम छीन करके ये मशीनरी को काम कर देगी, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन। सो कभी भी कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं, कभी भी कुछ इस तरीके का चेंज आता है, तो उसके लिए हमें एम्प्लॉइज को रेडी रखना चाहिए, ठीक है, और उनको बताना चाहिए कि दिस चेंज इज नॉट गोइंग टू चेंज योर पोजीशन, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, दिस इज नॉट गोइंग टू बेसिकली टेक योर जॉब और समथिंग। सो पहला तो ये मतलब बैरियर है कि लोग बदलाव को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। सेकेंड वन इज फेलियर टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि लोगों को जॉब, देखो डेलीगेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफर करना, ठीक है। सो ऑफन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कई बार क्या होता है कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है एम्प्लॉइज को, वो आप प्रॉपर्ली, एम्प्लॉइज को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशन देना है वो आप प्रॉपर्ली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, या प्रॉपर्ली उनको कोई जॉब प्रॉपर्ली ऑफर नहीं करते, सॉरी प्रॉपर्ली उनको वर्क ऑफर नहीं करते हो। तो ऐसे केस में सर्विस क्वालिटी में तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी। जैसे कि देखो, अगर कोई मॉल है और उस मॉल में एक पर्सन को आपने क्लोथ्स के डिपार्टमेंट में रख दिया और उनको बोला कि भाई आप जो है वो क्लोथ्स दिखाओ और उनको क्वालिटी बताओ, लाइक फैब्रिक कौन सी है, और वो पर्सन जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ डील करता था, यानी कि वो लैपटॉप सर ये सब में काम करता था। तो ऐसे सिचुएशन में यानी कि जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी क्या चाहिए, आपने क्या दे दिया, आपने क्या डेलीगेट कर दिया, तो ऐसे केस में द सर्विस क्वालिटी विल डेफिनेटली डिट्रॉयड बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट नॉलेजेबल इन दैट एरिया, राइट। सो यहाँ पर कई बार होता है क्या कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में ही गड़बड़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, यानी टॉप मैनेजमेंट से आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं मिलता है, किसको, एम्प्लॉइज को प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं मिलता है। सो दैट कैन आल्सो बी द रीजन ऑफ द we can say that is a barriers in the internal marketing. Managerial incompetence, यानी the managerial is not as such basically कहते skilled नहीं है, work effectively नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में वो खुद ही स्किल्ड नहीं, तो हाउ दे कैन एबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज। सो दैट ये भी एक रीजन है, आपका सर्विस क्वालिटी कई बार क्या होता है, डिट्रॉइट हो जाता है। अब नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल मार्केटिंग। तुम लोग सबके पास ये वाला नोट्स है ना, ठीक, कौन वाला? एक्सटर्नल क्या बोल रहे हो मैम? ये वाला नोट्स सबके पास होगा बेटा, ये भेजा है मैंने ग्रुप पे।
एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नहीं होगा तो कोई बच्चा दे देना आदित्य को, कोई भी बच्चे से बेटा आप ले लेना, तोशी से ले लेना, ठीक है। ठीक है मैम, आप भी 40 क्वेश्चन हम लोग को लिखवा के दो भी लिखवा दीजिएगा मैम। बेटा एक मिनट मैं इस बारे में बात करूंगी। ओके मैम। Next one is like what is external marketing? So external marketing is something where the company is promising with the ये customers के साथ promise करती है, यहाँ पर pricing strategy को adopt करती है, promotional activities करती है, communicate करती है customer के साथ, लेकिन यहाँ पर कौन involve होगी? कंपनी। एंड ये क्यों होता है? व्हाई द एक्सटर्नल मार्केटिंग इज डन? बिकॉज ऑफ द टू थिंग, फर्स्ट अवेयरनेस के लिए, दूसरा अटेंशन को कैप्चर करने के लिए किसके? कस्टमर्स, ठीक है। सो एक्सटर्नल मार्केटिंग इज अ समथिंग, या वी कैन से दैट इज द एक्शन ऑफ द प्रमोटिंग द या प्रमोटिंग एंड सेलिंग द सर्विसेज और प्रोडक्ट विच इंक्लूड, उसमें सारी चीजें आएंगी आपकी, मार्केटिंग, रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, पब्लिक रिलेशन, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द एक्सटर्नल मार्केटिंग। तो बेसिकली ये प्रमोशन करने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराने के लिए, सर्विस के बारे में अवेयर कराने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए वी आर यूजिंग द एक्सटर्नल मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज द वेरियस एम्स एंड व्हाट इज द बेसिकली एम्स ऑफ द एक्सटर्नल मार्केटिंग? सो द एम क्या है एक्सटर्नल मार्केटिंग का? अगर हम सर्विस के कंसेप्ट में देखें तो इंक्रीज द क्लाइंट्स एक्सपीरियंस, क्लाइंट की एक्सपीरियंस को इंक्रीज करना, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, दिस इज द बेसिकली वर्क ऑफ द एक्सटर्नल मार्केटिंग। अब यहाँ पर एम्स में अगर आए तो सबसे आप लोगों को तो पता ही है, अवेयरनेस क्रिएट। अवेयरनेस क्या होता है? जागरूकता। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है मार्केट में, ठीक है। लाइक फोन का एडवर्टीजमेंट अगर Amazon ना करे, so you are able to understand that this phone is existing or not. Whenever अगर आपको खरीदना है तो एक अलग बात है, तब आपको पूरा सर्च कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोशन का वर्क होता है। तो यहाँ पर अवेयरनेस के लिए बेसिकली हम एक्सटर्नल मार्केटिंग करेंगे, कस्टमर को बताने के लिए, प्राइस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सेट करने के लिए कि कितना प्राइस जो है कंज्यूमर बिलिंग कर रहा है पे करने के लिए, ठीक है। साथ साथ में हम लोग किस तरीके का सर्विस लेवल क्या है, मतलब सर्विस लेवल का क्या एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर कितना सर्विस चाहता है, उसके लिए कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑल दीज फोर वर्क्स आर बेसिकली फॉर द एक्सटर्नल मार्केट, ठीक है। नाउ द वर्क, नाउ देयर इज वन मोर टर्म दैट इज इंटरैक्टिव मार्केटिंग। सो इंटरैक्टिव मार्केटिंग जो है वो क्या है, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया? इंटरनल मार्केटिंग, एक्सटर्नल मार्केटिंग, सर्विस ट्रायंगल, जितना भी बताया मैंने अभी, सारे पॉइंट्स मैंने एक एक करके सारे पॉइंट्स बता दिए थे। किसी को कोई डाउट है कुछ भी?